everybody, and thank you for joining in. People who joined in right now, people who will join me. Can you all hear me properly? First of all, it's important to ask if you can hear me properly. Yes, Yes, we are. we can. Great. Yes, sir. So, yeah. जी आज का जो डिस्कशन है वो उसको डिस्कशन रखते हैं और जो मैं बात करूंगा द टॉपिक दैट came out in that picture I saw on Facebook was was worrying because I figured कि ना तो मैंने कभी मार्केटिंग फॉर्मली पढ़ी, ना मुझे आती, और ना मुझे ब्रांडिंग फॉर्मली आपको सिखा सकता हूँ मैं एज अ टीचर और प्रोफेसर. But what I can teach you and what I can maybe share with you, more than the word teach would be a wrong word, what I can share with you is my learnings over the years of how I've understood the word branding. And it's my opinions may be a little different. My angle would be a little different. You may choose to accept them. You may choose to disagree with them. It's entirely your choice. You have all the rights to make your own decisions. I would like to also use a bit of slides alongside. मैं वो use करूँगा ताकि कुछ ऐसे concepts होते हैं जो देख के याद रह जाते हैं, तो आपको आसानी होगी उसको कैरी फॉरवर्ड करने में. आपको स्लाइड्स बाद में चाहिए हो आप वो मांग भी सकते हैं. My career has been rather multi-dimensional, so it's been a long time now. It's been 15 years, more actually touching 16 years that I've been in the industry on and off. In the process, took some break for my masters बाहर जाने के लिए, और उसके अलावा मैं पाकिस्तान में ही ज़्यादातर काम किया. और तो पाकिस्तान में जो माइंडसेट है SME सेक्टर का, वो मुझे उसकी समझ है क्योंकि मेरा एक्सपोजर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा. इसी तरह जो स्टार्टअप्स की स्पेस है जब शुरू हुई पाकिस्तान में, इसको फॉर्मली उठाया 2011-12 में, so I got to work in the government. Lucky enough to be amongst those early people who helped the ecosystem. तो वो किया जिसके अंदर आपने कुछ इंक्यूबेटर्स वगैरह का नाम सुना, प्लान 9 हो गया, एक्सेलरेटर बने, कोवर्किंग स्पेसेस बनी, रोजगार सेंटर्स बने, और वो PITB के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा. वहाँ बहुत सीखा और बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला. Why I think I have a different approach to branding, it's because मैंने over the years realize किया कि when I'm trying to sell a concept or a theory or a phenomena, उसको आप सिर्फ और सिर्फ standard marketing tools के साथ और techniques mentioned in books के साथ नहीं कर सकते. The core factor that I figured after talking to lots of entrepreneurs, I've worked with a lot of entrepreneurs offline or even through my television gig and also through the work I've done over the years. So I've worked with a lot of founders. I've understood their problems. I've understood their strengths, their weaknesses, and helped some I could. और ख़ास तौर पे जो चीज़ मैंने realize की over the years was कि जब तक हम as a founder अपने आप को पहचाने मत, अपने पर्पस को ना पहचाने और अपनी वैल्यू सिस्टम को ना पहचाने, हम अपनी कंपनीज को ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाते. There comes a time when we get tired, when we get distracted, and ultimately we lose track. And the loss occurs in the form of a demise of a startup. So my focus today will a lot be on you. You as the founder, you as the one with the vision, you as the one driving your companies. So most of my conversation would be around you, more so than your business models or your areas of work. So मेरा ज़्यादा focus जो है वो आपके ऊपर होगा. So if my teams could maybe put up the slides alongside ताकि आप मेरी बात भी सुनते जाएं और साथ साथ मैं आपको एक थोड़ी सी partial academic setting में बताता भी रहूं. So as I mentioned, it's going to be about you primarily. तो अगर हम आगे ले जाएं slides को, मैं आपसे जो आज बात करने आया हूँ वो ये बात करने आया हूँ कि कोई भी अगर आप हिस्ट्री उठा लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री उठा लीजिए, फ्रॉम बैक इन द डेज इवन प्री सिलिकॉन वैली टू डेट, आप किसी भी मुल्क की एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी सुन लीजिए, जब तक एक फाउंडर अपने आप को सही तरह ब्रांड नहीं करता,
कहाँ पे ब्रांड नहीं करता उस पर मैं बात करूंगा। तब तक उसके स्टार्टअप की ब्रांडिंग भी उस हिसाब से सीमेंट नहीं होती लोगों के दिमागों में। लोगों में सब लोग आ जाते हैं, लोगों में आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, लोगों में आपके वेंडर्स भी आ जाते हैं, लोगों में आपके पार्टनर्स भी आ जाते हैं, लोगों में आपके इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। So it's essential, and I keep repeating this again and again, that we need to find out our best brand first. So who are we? So my focus, as I said, would be on you. It is important for us to understand here that more than the shoes we sell or the juices we sell or the or the or the amazing video games we're making on the internet or whatever it may be, what is most important and what shall stay is you. So you must understand that if you're not giving your own self attention, enough importance, you will not be able to do justice to your people in your company. You will not be able to do justice to that beautiful brand that you look at every day as yours. And there will come a time, as I say, that excuses ban jayenge and you may end up losing the plot earlier than you should. So what I say when I say you, what do I mean by that? I primarily mean your behaviors. I mean your attitude towards life. I mean your belief system, essential belief system. And this belief system could be driven by your religion, or it could or may not be driven by your religion. It could be maybe driven by your upbringing. Whatever it is, you need to know what it is. Hence, it's important for you to understand, as I said, behavior, attitude, beliefs and your values, because values बनती ही beliefs के ऊपर है। values की जो 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 फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है, वो आपके behaviors, आपके attitude में बनती है। So when I ask you about branding and when I speak to people and I ask them about themselves, and by the way, I do the same thing with myself, and I'll come to why it's important to look at yourself first from your own angle and then from the angle of others. If you do the other way around, you will never have any grounds, because people have opinions. People will always have an opinion about your branding. So remember this quote that will one day become important, is that one man's branding is another man's heartburn. And this man could be a woman also. So one woman's branding could be another woman's heartburn. Remember this. So you cannot look at your branding all the time from the lens of people. You must, though, look at your branding as an individual, as a human, as an entrepreneur, as a father, as a spouse, as a citizen. Any relationship that you may carry with your country, with the people in it, you must first look at all of it from your perspective, in the mirror, which is what is called reflection. So पहले जो मेरा सवाल आपसे होगा, have you met you? Have you met yourself? So the first thing where I want to start from is that I hope and pray that all of those people who found us here and listening to me have figured out their behaviors, their attitude to life, their belief system, and their values. I'd like to move on from this and see if we can move on. And what's next available for you is something I'll just quickly look at. People have done Maslow's hierarchy of needs के ऊपर बड़ी बातें की हैं लोगों ने, और हर बंदे का अपना ओपिनियन है। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इस स्विच ट्रायंगुलर पिक्चर को बहुत ज़्यादा वेट देता हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कभी भी ऑब्सोल्यूट नहीं हो सकती, बिकॉज ये सिंबॉलिकली आपको बहुत बता रही होती है आपके बारे में। तो जहाँ पे आप अपनी नीड्स को, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर अपनी सेफ्टी नीड्स को कैटर करते हैं, फिर आप बिलोंगिंग और लव ढूंढते हैं अपने फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, उसके बाद आप अपनी स्टीम को बिल्ड करना शुरू करते हैं और बाद में आप अपने आप को ढूंढते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिगर पर्पस। ये जो जर्नी है फ्रॉम डाउन टू अप, you must understand that if you want to build your brand, and I repeat, if you want to build your brand, you must have walked through this entire cycle. You must know कि मेरे लिए मेरी फिजियोलॉजिकल नीड्स कहाँ से पूरी होती है, क्या जो वो पूरी होती हैं उसमें मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा वैल्यू सिस्टम उसको वैलिडेट करता है तो मूव ऑन। देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, सेफ्टी नीड्स पे आते हैं आप, उसके बाद आप अपनी बिलोंगिंग की नीड्स पे आते हैं।
इन सब चीजों को आप चेक करते हैं on the basis of the four things I said initially. You're you're evaluating all of this, your needs of esteem, who you are, because you know what this picture is showing? This picture is showing you. It's showing you your own self. It is the answer to the question that every investor asks you. Tell me about yourself. Who are you? Why are you doing this? The why is such a difficult question to answer only if you've not found your real self. And how do you find your real self? You find your real self by figuring out मैं हूँ कौन in terms of my physical needs, in terms of my emotional needs, in terms of my ego, in terms of my empathy, in terms of my esteem, in terms of my ability to work with people, which is attitude, and in terms of what is my bigger purpose, and is my bigger purpose equivalent to aligned with my value system? तो अगर आपका वैल्यू सिस्टम ही क्लियर नहीं है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही क्लियर नहीं है, आप कैसे कोई बड़ा पर्पस अचीव कर सकते हैं थ्रू योर बिजनेस? So I'm going to link all of this with your business, by the way, which I know as an entrepreneur, I can, as a repeatedly failing entrepreneur, I know exactly the pain of how it feels to start something of your own and failing and struggling and being alone and managing it yourself and then failing again and then getting up again. I totally understand and empathize with you. So I know you want to hear more about your own business, but trust me, your business is 80% you. It's you. Uske baad you start giving it away to people. How will you make, what makes a company investable? What makes a company, isko अलग तरीके से कर लेते हैं. What makes a company successful? Very relative term, works differently for everybody, but chalo, successful for the world. A vision, a team, and capital. Three things. Vision, team, capital. Three things. अगर आपका विजन क्लियर होगा, आपके पास अच्छी टीम होगी एग्जीक्यूट करने के लिए, और आपके पास कैपिटल होगा टू यूटिलाइज टू मेक थिंग्स हैपन. इन तीन चीजों पे आपकी फाउंडेशन खड़ी होती है. तो मुझे एक बात बताइए, आई एग्री फवाद, मैं आता हूँ उस पर. अब एक बात बताइए, अगर आपको अपना आप ही नहीं मिला हुआ तो विजन कहाँ से बनाएंगे आप? अगर आपको अपना आप ही नहीं पता तो आप अच्छी टीम कैसे हायर करें? How would you know who are the right people for you and your company? अगर आपको अपना आप ही नहीं पता तो आप इन्वेस्टर को क्या दिखाएंगे? The investor is pretty much investing in you and then your company, and we all know that. So आपका फोकस आपके अपने आप पे होना बहुत जरूरी है. That's what I'm trying to build as a premise. हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे एक स्लाइड क्या कहती है. मैं अपनी स्लाइड्स खुद नहीं बनाता तो मुझे भी कभी कभी शौक मिलता है क्या आ गया. So bear with me. So if I talk about brand or vision, अभी आपके सामने तस्वीरें लगी हैं कुछ लोगों की. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा. Why do you even need branding? That's the question you need to ask yourself. Do you need branding for yourself? Why? आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, आपको अपने ब्रांड को लोगों को दिखाना है. देखिए, अपना ब्रांड पता होना तो जरूरी है. अब आई बात दिखाने की. दिखाना क्या है वो एक सेकंड पार्ट है. इस पे तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है कि अपना ब्रांड नहीं पता बंदे को. You need to be able to sit in front of the mirror and say, this is who I am. That there's no compromise on that. What can be compromised on is the next decision. क्या मैंने अपना ब्रांड दिखाना है या मैंने अपना विजन दिखाना है? यहाँ पे वो डिसीजन आता है not on the basis of मुझे क्या अच्छा लगता है, on the basis of what the business requires. Some companies do not need to show off their CEO. Some companies need to work in a way that उनका CEO ही नजर आए या उनका CMO ही नजर आए आगे. So there has to be that decision that has to be taken. This picture gives you that symbolic decision. When you look at Jinnah, for example, you don't see a brand, you see a vision. Similarly, you may have different opinions about these people, and that's what I want you to think about right now. Okay, क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या उसमें
ब्रांड इंपॉर्टेंट है मेरा या मेरा विजन इंपॉर्टेंट है? मुझे क्या सेल करना है? With the prime minister, the current prime minister, we all could have different opinions about him. He's a brand, one of the biggest Pakistan produced, whether we like him or not. Remember something with branding. As I said, one man's branding is another man's heartburn. It's perfectly fine for people to disagree with the brand, but even when you are disagreeing with someone, they are a brand. You can't deny that. So someone's a brand and someone's a vision. कोई अपना विजन दिखाता है, कोई अपने ब्रांड को दिखाता है. अब आपने डिसीजन कैसे लेना है ये आपके ऊपर एज एन एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन योर बिजनेस होगा. इफ आई कैन मे बी टेक क्वेश्चंस अ लिटिल बिट लेटर, बस हम खत्म कर लेते हैं इस फ्लो को, देन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस दिस फर्दर फॉर श्योर. हम आगे चलते हैं ताकि हम बेसिस बना लें, उसके बाद सब बातचीत तो होती रहेगी. यू कैन मे बी मूव ऑन. So here's something more relatable to you. Brands. Just want to show something to you. I'm not endorsing them. I'm not endorsing Tesla or McDonald's or all these. I'm just saying, if you read their vision statements, who made those vision statements? Those vision statements were not a group activity. कि आओ बैठ के vision बनाएं. It was, if you go deep behind the scene, there was this one person or those two co-founders who came up with that vision and who stuck by it, because the entire framework of how you're going to go ahead with the company gets established on the basis of that vision. And if that vision isn't clear, you could do all that you have to, but वो एक certain point के बाद जाके वो इस तरह के brands नहीं बनेंगे जो कि सबके minds में cement हुए हैं. आपके सामने जो brands बने हुए हैं ये लोगों ने बनाए हैं. So what's important? This logo, LOGO, or the people who made those brands? It's the people who made those brands. They first figured out their own branding. They established a brand for themselves, which they could show and be very comfortable with to people they wanted to hire. They sold the vision. They sold the idea by being salespeople. But when they're making great teams, what's happening? A founder has a gorgeous vision. वो रेडिएट कर रहा होता है या कर रही होती है अगर वो टोटली अपने आप को ढूंढ चुका हुआ है, अपने पर्पस को अलाइन कर चुका हुआ है विद द बिजनेस. उसके बाद उसको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है किसी तरह भी लेट डाउन करना. वो इतना थिक स्किन्ड हो जाता है इसी की बेसिस पे. उसका बिलीफ सिस्टम होता है उसके विजन में, जिसका पैशन ड्राइव कर रहा होता है उसको, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है. तो उसी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसी से कैपिटल अट्रैक्ट होता है. Capital कौन है? Capital is people ultimately. It's investors who are investing in you. So they get attracted to your vision and your motivation to make those brands happen. So इसलिए it's essential once again to focus on the you, which is what I'm trying to build as a premise. Let's move further and see. So I asked you a question. I'm going to ask you again. Are you trying to build a new brand with the same old actions? So you were working for some company. उससे पहले आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. आपकी कुछ आदत थी, आपके कुछ दोस्त थे, आपके कुछ सर्कल्स थे, आपका शुगर मेला भी था, काम भी करते थे, सब कुछ चल रहा था. एक one fine Monday morning, you decide कि I'm going to build a brand, I'm going to build a company, I'm going to build $1 billion business one day. Decide हो गया जी. The main question to ask is, what are you willing to evolve and change about yourself that would help you now build something new? What has worked for you till that date when you were working for an MNC or studying in a college or doing your PhD or whatever it was? आप उस वक्त अपने certain traits को अपने actions के through nurture कर रहे थे. अब आपने एक नया brand develop करना है. How can you expect to build something from scratch with the same old actions, with the same old ways of spending time, with the same old circle? You will need to make that switch happen. So are you willing to make that switch happen? That's the question we must all ask ourselves every now and then. If I move forward, the question that next comes to our minds, and I'm sure अगली slide भी यही होगी, कि मैं break down कैसे करूं brand को? What can your own branding be broken down to? My friends, it can be broken down into three very basic things. Very basic things.
your thoughts, your words, and your actions. Three things. How you think, what you think, what you say, how you say it, what you do and how you do it. Your behavior, your attitude, your values, and your beliefs. Jab tak you don't figure this out well, you can try and maybe have mediocre success. You cannot build a great company, because a great company is built on the basis of, on the foundation of what you give it as an input. Your entire team gets attracted to something called culture. इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं. Culture क्या है? It's a depiction of your values and your beliefs. It's not what is in. एक अमेरिका की कंपनी के अंदर रंगीन किस्म के बिग बीन बैग्स लगे होते हैं और ये होता है वो होता है और सब बड़ा टी कॉफी पी रहे होते हैं, तो क्या मुझे भी वो चाहिए? भाई मुझे वो क्यों चाहिए? How does that serve the purpose? कूल लगेंगे, ब्लॉग लिखा जाएगा, यार कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लॉग लिखवाने से. As someone who's been in this game for a while, I'm telling you, कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not matter. So इसलिए what matters is, at the end of the day, when you will be meeting real folks and serious folks and people who matter, they would want to talk to you about you first. They would want to know your ways of how you monitor your thoughts, your actions, and your words. And one of the best ways to do that, if you want to improve these three things, the best way is to get rid of some old baggage, move into what is called reflection, and I'll talk about what reflection is in a bit. If we can please move forward so that I can then take questions once it's over. So there's this little concept that I built of an idea, because मेरा ताल्लुक एक ऐसे लफ्ज़ से इसका नाम idea है कि प्लान 9 में भी हमने जो बनाया था उसका क्या कहते हैं, स्लोगन कहते हैं, where ideas take flight हमने बनाया 2012 में. तो आइडिया का लफ्ज़ मेरे साथ अटैच हुआ है. देन आपको सबको पता होगा एक टीवी शो किया, उसका नाम आइडिया था, आइडिया करोड़ों का. So the word idea attracts me a lot. So what I came up with a couple of years ago was how I can maybe convert it into something that can become a concept. So I want you to look at this word idea the other way around. Start with the A, go to the E, go to the D, and then go to the I. Everything in life. आपने अभी गालिबन फवाद साहब थे जो भी थे, उन्होंने कहा इम्पैक्ट लिखा नीचे. जनाब मैंने आपसे कहा था मैं वहां आ रहा हूं. आपका जिंदगी का पर्पस और आपके बिजनेस कारोबार के अंदर अलाइनमेंट का अगर इफेक्ट एंड प्रोडक्ट इम्पैक्ट नहीं है तो आपने कुछ नहीं किया. आपने बस दाल रोटी कमाई है, which can never sustain. Impact stays, money does not. Impact stays. So if the goal is impact, how do we get to impact? So here's how the idea ka jo concept mere paas hai, it helps us get to what is called impact. And if you start with the A, which is awareness, awareness leads to this extraordinary energy in you to make things happen, something you call passion. And then with that passion and with that awareness of self, awareness means self-awareness. इसकी बात करता हूँ मैं भी. What happens is disruption. आप पढ़ते रहते हैं disrupt होगी market, disrupt होगी market. और disrupt market सिर्फ तब होती है जब किसी एक इंसान ने अपनी self-awareness के through अपने passion को channel करके वो disruption को move किया होगा, उसको बनाया होगा. And that disruption, when it happens, causes impact. Impact becomes a consequence that stays forever. So if I can go into a bit of detail about this, when I talk about awareness, what exactly do I mean? I literally mean just one word, and that one word is called reflection. It's called self-reflection. It's one of my favorite concepts about life. Self-reflection is about reflecting on your own ways of living continuously, about finding the
best possible version of yourself. That's reflection. That's what it does. It helps you find the best possible version of yourself. So how the reflection cycle works, and by the way, this can be verified through different religious scriptures as well. उनमें भी आता है, आप उसको उस तरह पढ़ लीजिए. मैंने इसको अंग्रेजी में लिख दिया आपके लिए. The 5 hours give you the cycle of reflection. So you start with recalling your life. What did I do wrong? What did I do right? Do I realize the wrongs? Do I realize the rights? Do I regret for the wrongs? And do I rejoice the rights? Am I willing to rectify it now? Am I willing to build upon it? Yes. And then the next thing you do is repeat. So the next thing you do is you repeat this cycle. It's continuous iterations of this every passing week, day, whenever you have time. Remember, this can play a massive role in helping you find yourself. Self-awareness. Self-awareness happens through reflection. अगर आपको अपना आप मिल जाता है, आपको अपने आप के अंदर कमियां मिल जाती हैं, आपको अपने आप के अंदर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाते हैं, आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं अपनी टीम्स को. आप बहुत कुछ, आप अपने सबसे बड़ा काम जो आप कर जाते हैं, जी जनाब, इंट्रोस्पेक्शन, जो सबसे बड़ा काम आप कर जाते हैं, आप लोग बना देते हैं. मेरी नज़र में कामयाब एंटरप्रेन्योर वो नहीं है, हमारे मुल्क में तो खास तौर पे नहीं है. सिलिकॉन वैली का कोई शशका चल सकता है इस तरह का, and I know these things sell, but having traveled most parts of my country and being rather patriotic and understanding how it works in Pakistan, I don't think we need an Elon Musk. I don't think we need the big names. What we need are entrepreneurs who can create more entrepreneurs. That's my desire, and I feel a great entrepreneur is someone, that's my definition, who creates leaders, who creates dreamers, and who nurtures them, who cares for them, and at certain points in his life, he or she is willing to let go of them so that they go create something bigger and better. Economies इस तरह बनती हैं, एक के ऊपर एक बंदा बनता है, तो फिर जाके लोग कामयाब होते हैं. अगर आप साइलोज में काम करेंगे और अपने ही ब्रांड के पीछे लगे रहेंगे और अपने ही मामलात में लगे रहेंगे, तो वो शायद ना हो पाए. तो सेल्फ अवेयरनेस आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, वो जिम्मेदारी जो कि सिर्फ एक कारोबार को कामयाब करने से ज़्यादा है. इम्पैक्ट की बात करते हैं और सारा टाइम पैसों की बातें करते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका इम्पैक्ट ड्रिवन जिंदगी है. अगर आप इम्पैक्ट की बात करते हैं तो you have to think beyond that bottom line and those sales and the figures, the burn rates, and all the jargons we use in entrepreneurship. It has to be something bigger. And that something bigger, it all happens within us through the power of awareness. So that's awareness for you. And if you have that awareness, if you move on, what you will see is you'll see all of the three happening. You'll see your passion, your energy coming out. You'll see disruption actually starting to happen because of, as an aftermath to your actions, to your decisions. And that, my friends, the world calls impact. यार बड़ा impact है काम, बड़ा impact है. Impact आराम से नहीं आता. It takes time. This journey is. We are live. Janab, I guess we are back. Sorry about the disruption, technology issues. Janab, so what I was talking about was something that was a concept that I gave, an idea. इसका मैंने बताया आपको कि awareness of self हो, तो हम अपने अंदर right energy, right passion लाके disruption ultimately impact create कर सकते हैं. If I move ahead and if I give you this concept now, कि मैं sum up करना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो best branding होती है वो क्या होती है. In my opinion, जो आपकी best branding है, वो branding है जो जिस तरह आपको सबसे ज़्यादा constantly एक stability के साथ consistently लोग आपको देखते हैं.
जिस तरह लोग आपको पहचानते हैं। आप अगर वो इंसान है जो मुख्तलिफ सर्कल्स में मुख्तलिफ रंग ले लेता है, या जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली फ्लेक्सिबल होने की नीयत से अपनी वैल्यूज और अपने बिलीव्स पे कॉम्प्रोमाइज करता है, उस इंसान के ऊपर यूजुअली कॉन्फिडेंस रखना एंड बैंकिंग समवन्स मनी ऑन इट एंड बैंकिंग योर टाइम और समथिंग लाइक दैट ऑन समवन who's a bit irregular with his or her way of handling things मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे बंदे के साथ चलना, a lot of people don't, as employees, don't seek the right inspiration from you then, which they must, because if you have to work for someone, you should be inspired by their vision, and you should be inspired by them. And what is them? Them is your traits, the way you drive your words, thoughts, and actions. So वो आपका बड़ा consistent होना चाहिए। और जब आपकी वो consistency होगी, आपका एक brand बना होगा, तो देखें, एक बात मैं मुश्किल करने लगा था, वो करीम ने मुझे बंद कर दिया फिर। जो मुश्किल बात थी वो मैं ये कह रहा था कि आप अपने ब्रांड को कैसे देखते हैं, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या कहते हैं, ये कम इंपॉर्टेंट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और आई एम श्योर आप सारे हैं, आप थिक स्किन्ड होंगे। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि आपके किए हुए काम को, आपकी जर्नी को लोग मॉक कर रहे हैं, या लोगों को लगता है कि वो उसको टिक मार्क नहीं करते, उसको वैलिडेट नहीं कर रहे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे आपके लिए। इट शुड नॉट मैटर टू यू। व्हाई? बिकॉज यू आर ड्रिवन नॉट बाय पीपल, यू आर ड्रिवन बाय योर विजन, एंड यू आर ड्रिवन बाय व्हाट यू वांट टू अचीव। यू नो, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं पीएमपी भी हूँ और ये वो, तो मुझे पता है कि जब एक प्रोजेक्ट खुला होता है ना, तो इट लुक्स अगली, इट लुक्स हिडियस, उसकी कोई फिगर कहीं में सही मैच नहीं कर रही होती, किताबें आपकी अजीबो-गरीब हुई होती हैं, कैप टेबल का हाल खराब होता है, बुरा हाल होता है। लेकिन व्हेन यू गेट एवरीथिंग इन ऑर्डर, जब वो प्रोजेक्ट प्लानिंग से लग के क्लोजिंग तक पहुंचता है, क्लोजिंग पे वो प्रोजेक्ट अपनी खूबसूरती दे देता है। अब आप एक जर्नी पे हैं, उस जर्नी में आप अपने अभी मिड वे पहुंचे हैं, और लोग आपको उसके ऊपर डिनाउंस कर देते हैं, या आपका मजाक बनाते हैं, या उनको समझ नहीं आती, तो क्या फर्क पड़ता है? उनको समझना चाहिए जो वो कर रहे हैं खुद, आपको करना है जो आप करें खुद। तो आपका ब्रांड लोगों की वजह से नहीं बनता, आपका ब्रांड लोगों की वजह से बनना चाहिए भी नहीं है। तो इसलिए देयर ओपिनियन, वो जो एक कॉन्सेप्ट है माइंड ओवर मैटर, उसको कॉन्सेप्ट को अपने दिल के साथ रखिए अगर आपने अच्छी ब्रांडिंग करनी है अपनी और अपने स्टार्टअप की। You don't mind and they don't matter. That's how it works. Coming to one of the most important parts of this discussion is the concept of culture. जो सारी मैंने एक कहानी सुनाई है ना आपको, वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? अल्टीमेटली ये जा रही है कि एक कल्चर इंसान को क्या सिखा रहा होता है। एक कल्चर इंसान को ये सिखा रहा होता है कि हाउ डू यू ऑपरेट, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एज अ कंपनी, what are the things you value in the company, how do you celebrate success, how do you manage failure. It all stems from your clarity and your stability and your maturity as a founder. So this one word is essential, which is maturity. अगर आप mature नहीं हो, आप mature team को manage नहीं कर सकोगे और उनको retain नहीं कर सकोगे। आप शायद hire कर लोगे, funding उठा ली, seed funding आ गई, अच्छे लोग रख लिए, you bought hours of people, sure. For how long? There will come a time when you won't be able to retain them anymore, because retention will not happen through money. It will happen through the culture. It will happen through how people grow under you, how people grow in your brand, how much do they own it. That culture has to be something very original to you. It can't be a me too of another culture. It has to be a depiction of your value system and your belief system as a founder. Not what works. Because अगर आपने what works करना है तो फिर किसी और के लिए काम करना है. If you are creating something new and something that's your own, it should have the flavor of you and your own self in it. And that's what entrepreneurship is. That's what makes entrepreneurship and entrepreneurs amazing people, because they give new definitions. They build perceptions. They don't buy a perception. And that's where I want to come to next. And I'm sure जो अगली उन्होंने बनाई होगी वो है भी यही। आप
याद रखिएगा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो परसेप्शंस को बाय करते हैं, और एक वो जो परसेप्शंस को क्रिएट करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की बड़ी क्लियर कट क्वालिटी होती है, आप उसको हमेशा एक परसेप्शन बनाता देखेंगे। परसेप्शन है क्या? परसेप्शन इज ए डिपिक्शन ऑफ द ब्रांड यू आर। अब इमेजिन परसेप्शन रियलिटी, जितना कम गैप होगा इसमें उतना ज्यादा आप कामयाब होने के चांसेस रखते हैं। जितना कम गैप होगा, डेल्टा जितना कम होगा बिटवीन परसेप्शन एंड योर रियलिटी। आपने एक परसेप्शन दी अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, लोग आपसे मिलने आए, उन्होंने आके देखा आपको, उनको बड़ा कम फर्क नजर आया बिटवीन द परसेप्शन यू क्रिएट एंड द रियलिटी कैरी। दैट्स वेयर द ब्रांडिंग हेल्प्स। इट रिड्यूसेस दैट डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। उससे होता एक और चीज भी है, उससे एक जो और चीज होती है वो ये होती है, यू डोंट फॉल टू डिफरेंट नैरेटिव्स, यू डोंट फॉल प्रे टू देम, यू डोंट गिव इन टू देम, you are very clear about what narrative you're trying to sell. विजन क्या है? विजन एक नैरेटिव है, और नैरेटिव कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है। तो अगर आप, if you get lost in narratives built around you, that's one thing that will ruin you as a founder, because आपकी अपनी choices की जिम्मेदारी आप लेना छोड़ देंगे। आपकी choices will be driven from out to in, from the external stimulus. Your choices will not be your own, and what is not your own, you cannot own it for long. थोड़ी देर तो आप कर सकते हैं, you can make believe, पर थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाता है perception. And that's what I want to push today, and that's where I want to also make you think about something very interesting, which is a small activity just for you to do symbolically, which will help you think about perceptions. What's the first thing that comes to your mind when you think of the following? आप सब सोचिए अपने आप से, एप्पल, टी, फोन, वाटर, हैप्पीनेस, फ्लैग, फ्रेंड्स। हर चीज के साथ एकदम एक तस्वीर आती है, और वो तस्वीर कहां से आ रही है? वो आपके दिमाग से आ रही है। आपके दिमाग में उस चीज को, इसकी एक पिक्चर बनी हुई है, इस लफ्ज से वो चीज एसोसिएट हुई है, वो नैरेटिव एसोसिएट हुआ है उस लफ्ज से। Choose your narratives wisely. That's my only advice. Choose them very wisely. They can make you and they can break you. The last and the closing slide for me, as always, is that I say to you that when you're an entrepreneur, please have it extremely clear about your own self. Who are you trying to brand here? Are you trying to brand people as in yourself or your people? Are you trying to brand the product you've made, the shoe you've made, the phone you've made, the app you've made? Or are you trying to brand a narrative? Be extremely clear when I have branded different things in my life. I have branded the brands I built, the companies I built, or the projects I ran. I've branded them. There's a different approach. I had to brand myself on certain occasions. There's a different approach. I am also sometimes trying to sell a narrative. It does not go well for many people, but it does also go well for some. So what's important is for you to be clear, what are you selling and why? It all boils down to one word, and that one word is think. Before anything else, whenever and whatever you want to do with your lives, with your brands, with your companies, with your own self, please, the one key word that you must make your best friend is think. Think before you do things. That's all I have for you, and I'll now take your questions. I hope this was useful. Let's open it for questions, please. Am I audible? Yes. Can I ask a question? I have
certain discussion to do regarding everything that you have given to us today. So, am I audible? Yes, I can hear you. मैं आपको सुन सकता हूँ. Okay. Okay. So you started with branding yourself and your self attitude and your belief, but when a startup goes into a market and it tries to sell its beliefs and its attitude, मतलब वही आप sell कर रहे होते हो ना कि यार I work this way. This is how I want things to be done. So a certain example from our startup would be that we were trying to sell outsourced deliveries for B2B clients, for restaurants and COD clients. We were trying to outsource deliveries for them. And they've been delivering food and they've been delivering their parcels for a long time. So we wanted to take the entire thing on us. So when a startup goes to a company that is already delivering and outsourcing their thing, so instead of accepting our beliefs and our attitudes, they try to give us their attitudes. मतलब they try to enforce their attitudes and beliefs on us. यार देखो इस तरह काम करें, हम लोग इस तरह काम करते हैं. This is how we work and this is how we will give you work. So obviously for a startup, business is bigger than anything else. मतलब we need something, we need to do something. Okay, we need business. So in the start, we took their business, and after that, after a certain period of time, what? I think someone's mic is on. Sorry for the interruption. So when we started doing business with them, after like 15 days, 15 to 20 days, we were able to convince them to come onto our attitudes, onto our ways of doing business. So I think it is a give and take situation. If you become very firm on your attitudes and your beliefs and you say nahi bhai isi tarah kaam karna hai aur isi tarah maine lena hai, and you're not agile about it, I think the market repels you sort of. If you're not what do you say that, sacrifice keh le ya compromise keh le, if you don't compromise your attitudes and beliefs at some point, but then you can make them inherit in terms of customer, in terms of businesses, you can make them inherit your beliefs, make them learn your beliefs over a period of time, but you cannot enforce it on them right away. What do you say? मैं आपसे बहुत बिल्कुल थैंक यू फॉर द पर्सपेक्टिव. बहुत आप ठीक बात कर रहे हैं और अच्छा किया आपने मेंशन किया ताकि आई होप मैं ऐसा आई हैवंट कम आउट लाइक दिस. व्हाटएवर यू आर सेइंग इज 100% करेक्ट. Adaptability to customer need is extremely important. I am assuming you're talking about customers. And we're talking about customers. Exactly. Customers king. Customer is king. No doubt about that. But my friend, what I was trying to push on was how you drive your company, how you drive your culture. Look what you said in the middle. You said, शुरू में नहीं माने, उसके बाद हमारे तरीके पे आ गए. क्योंकि आपको आपका तरीका पता था. मैं जो बात कर रहा हूं वो ये होता है कि a lot of our founders, not just Pakistan, globally, because they don't stand for anything, they almost fall for almost everything. So उससे क्या होता है, they're not able to position themselves with a certain kind of branding in the minds of people. देखिए कस्टमर के साथ कभी कभी अपने पॉइंट पे रहना और बाद में डिलीवर भी कर देना. मेन गेम इज डिलीवरिंग व्हाट यू कमिट. इफ यू आर एबल टू डिलीवर इट, वो कस्टमर आपका पक्का कस्टमर है और फिर वो आपके हिसाब से अडेप्ट भी करेगा. आपके हिसाब से अडेप्ट करेगा. मेरे वर्ड्स को बेगौर कीजिएगा. आपने कहा कि आपको आपका हिसाब पता है. अगर आपको आपका हिसाब पता है, दैट्स वंडरफुल. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि व्हेन यू आर स्मॉल यू कांट बी चूजर्स एंड यू, बट यू आल्सो शुडंट बी बेगर्स. देयर हैज टू बी द राइट बैलेंस. बिल्कुल ठीक बात है. कस्टमर के मामले में यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइजिंग. करना पड़ता है और सेल्स करना पड़ता है. सेल्स क्योर्स ऑल. इट्स द फ्यूल ऑफ द कंपनी. तो सेल्स पे करना पड़ता है. आई 100% एग्री विद यू. Yet I would once again push this as a concept to you that याद रखिएगा, it is extremely important कि आप अपने as a founder अपने लोगों को exactly बता पाएं कि आपकी कंपनी की फाउंडेशन किस चीज के ऊपर खड़ी है. बस ये आप इंश्योर कर लें. अगर आप ये कर रहे हैं, आई थिंक आप सक्सीड करेंगे इंशाल्लाह. There shouldn't be any reason for you to not do well. So can I move on to the next question, the next discussion part?
पूछिए। Not that well. Am I audible? My internet is not working जी very good. जी It जनाब, starts in the middle. I can hear you. I can hear you. The second part of discussion was where you were talking about reflection. So reflection is a very, I believe it is a very, what do you call that? Pure thing for me. So whenever I do reflection, I have a certain time, a certain way of doing reflection. So for everyone who is listening, who has listened, reflection, what I believe could be instant. मतलब एक चीज गलत हुई है तो right away you fall into reflection, and that is not healthy. That can वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन पे ले जाती है। आप बहुत become a very a big source of आप pessimism towards your approach in business. So what I do personally is that आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए प्लीज। So what I do specifically for reflection or introspection, what word I use is that I set a specific date, a specific time. उसके लिए एक mood बनाते हैं पूरा कि भाई पिज्जा मंगाना है, बर्गर खाना है, एक सिगरेट पीनी है आराम से, और उसके बाद बैठ के रिफ्लेक्शन करनी है। ठीक है, ये इंस्टेंट रिफ्लेक्शन, ये जो एक होती है एक जॉय के साथ रिफ्लेक्शन होती है, नहीं जी वो नहीं करनी। एक होती है जो वो इंटरनल बाइस के थ्रू आपके सारे जो स्टेप्स होते हैं, आपके सारे जो मोटिव्स होते हैं और जो बिलीव्स होते हैं उसको एक दफा क्लूड कर देता है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट दैट? मैं आपसे एग्री करूंगा। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यस, ये तो बात थोड़ी सी गलती हो जाती है कि अगर आपको एकदम से एक ख्याल आ गया है और आप वो कर रहे थे कुछ, आपने एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी थी कंपनी की और उसको बदलना पड़ेगा एकदम से। वेल, यू हैव टू काइंड ऑफ फिनिश दैट थ्रेड, जस्ट कांट स्टॉप एंड प्रोक्रेस्टिनेट एंड डिले थिंग्स, बिकॉज उसका एंड इफेक्ट तो कस्टमर पे होता है अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करें। पर मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं ये कहूंगा कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे टू हैंडल इट। Some people do it every night, some people do it after Fajr in the morning, some people do it once on a weekend, but they do write things down. The main goal is keep a reflective diary, write things down, things that you think are good about you, things that you think require improvement in you, and then how can you manage that gap? How can you reduce the gap between where you want to be and where you are? That's reflection. So बड़ा अच्छा तरीका बताया आपकी। रिफ्लेक्शन तो बड़ी टेस्टी किस्म की लग रही है, यहाँ पिज्जा वगैरह भी होता है, तो वो तो वहाँ तो बंदे को होना चाहिए। I think it's a great attraction for people to be part of your reflective session. Keep your questions, पूछ लीजिए, you have any? And the last question that you have flared, it was about keeping customer needs above all the other. जो हमारे एक और मेंटर हैं मिस्टर शाहिद, उनसे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ और उनके बाद मैंने बड़ा एक रीथिंक किया चीज़ों को। तो उसमें था थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड द कस्टमर, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। तो वो आपने क्लियर कर दिया मेरे पहले क्वेश्चन में कि यार कस्टमर इज एवरीथिंग। तो योर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स मैटर बट कस्टमर इज एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन देखिए वो बिलीफ एंड एटीट्यूड अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं यार, वो आपको पे बैक देता है, वो आपको कस्टमर के साथ पे बैक देता है, वो आपकी स्टबर्ननेस नहीं है। आप अपनी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड तो करें एक बार, उसके बाद वो आपके बिलीव्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करता है, वो आपसे उस तरह काम करता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, बड़े बड़े बिजनेस हमेशा पैसे कंटिन्यूअसली रिटर्निंग कस्टमर से बनाते हैं। रिटर्निंग कस्टमर्स इज व्हाट मैटर्स। और वो किसकी बेस पे रिटर्न करता है? वो आपकी कमिटमेंट डिलीवरी पे रिटर्न करता है, वो आपकी क्वालिटी पे रिटर्न करता है, वो आपको वापस बिजनेस क्यों देता है? आपकी कस्टमर सर्विस पे देता है। कस्टमर सर्विस के पीछे वैल्यूज नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? तो इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, देयर इज नो सेपरेट बॉक्स फॉर वैल्यूज एंड बिलीव्स। वो बड़ी इंस्टिल हुई होती है अंदर, वो आपके तरीके में नजर आती हैं। आप कभी चले जाएं 5 रेस्टोरेंट चले जाएं, 5 रेस्टोरेंट एक लाइन में, वो क्या है, वो हमारी लाहौर में एम आलम रोड है, चले वहां चले जाएं, आप हर रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको एक मुख्तलिफ तरह का एटीट्यूड नजर आएगा टुवर्ड्स यू। आप कहेंगे यार ये खाना अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम है। एक रेस्टोरेंट उसको और तरह डील करेगा, एक और रेस्टोरेंट उसको और तरह डील करेगा। वो उनका वैल्यू सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम उसमें रिफ्लेक्ट करता है इन द वे दे हैंडल द कस्टमर क्वेरी। मैं ये कह रहा हूँ, तो ये सब आपकी इंटरनल लेयर होती है। आपने ठप्पा अपने सामने लगा के फटी लेके नहीं जाना कि ये मेरी वैल्यूज है, टेक इट और लीव इट। नो, इट शोज
So it has to be done with a smile on your face, with the ability to serve. And while serving and building that relationship, you say, here's something that I also think we should do together. And in the next transaction, how about we do this? जब confidence हो जाए customer को आपके अंदर, और जब वो आपका returning customer बन जाए, वो आपकी values, beliefs को सर पर उठा के रखता है, क्योंकि उसको आप serve कर रहे हैं और उसको तो service मिल रही है आपसे, उसको तो आपसे वो value मिल रही है जो सिर्फ हमारे से नहीं मिल रही, उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो it can turn into a great relationship. And I think we should, as entrepreneurs, we should always seek returning customers. That's a great KPI for our success. Zabardast. Thank you. जनाब वाशिफिया, जी, I saw the chat. नबील, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो स्लाइड्स में जो वैल्यूज जो चीजें बताई हैं, एब्सोल्युटली राइट. एनवायरनमेंट जो हमारा है, दैट एब्सोल्युटली निगेट्स दीज थिंग्स. तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाती है हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, the air we are sharing with each other, the water we are swimming with other, वो इन सारी चीजों के ऑपोजिट है. वो इसको निगेट कर रहा है, वो आपकी वैल्यूज को निगेट कर रहा है, वो जो है वो टेंजिबल्स पे फोकस करता है, वो इम्पैक्ट पे फोकस नहीं करता. और ये सारी चीजें जो हैं वो इन्वायरमेंट में आप किस तरह फिट इन करते हैं? स्लाइड्स की हद तक आई एग्री कि ये बिल्कुल परफेक्ट हैं. मैं बाहर जाता हूँ तो लेट्स से कि मेरे साथ उन वैल्यूज को की अडॉप्शन नहीं है, लोग उनको अडॉप्ट नहीं करते, मैं तो बड़ा अकेला हो जाऊंगा इस इन्वायरमेंट में. फिर इस तरह जनाब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. आई थिंक जो मैंने इन स्लाइड्स में लिखा है जनाब, वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से लिखा, तो ये एकेडमिक तो नहीं है. दिस वर्क्स एंड एज समवन हु इज, अगर आपने मेरी प्रोफाइल थोड़ी बहुत देखी हो, you may agree or disagree with what I do, but I do it with a lot of vision, a lot of desire, a lot of clarity. I am very clear about what I am doing on television. People I think disconnection, Nabil can play again. Nabil, are you there? UV, can you please stop the feed then? people like it, some people don't like it. It does not matter to me. Is what, why not? Again, में लिखा था, आप अपना वो अपना आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने आप को बेच रहे होते हैं. मेरे ख्याल है जब इनको पता लगा कि इंटरनेट सबने यूज करना है, इन्होंने खराब कर दिया. सब लोग अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, दैट माइट हेल्प. जी जनाब, apologies for this. हाँ जी, apologies for this. मैं आपको कह रहा था जी कि मैं जो आपसे कहना चाह रहा था वो ये था कि आपने देखना ये कि इस वक्त आप सेल क्या कर रहे हो. इन माई केस फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने कहा कि अगर मैं कोई नैरेटिव बेच रहा हूँ, कोई पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहा हूँ, तो आप देखिए मेरी अप्रोच क्या होगी. मेरी अप्रोच बड़ी सिंगल ट्रैक होगी. इसमें मैं वन वे अप्रोच लूंगा. मैं रिसेप्शन नहीं ले रहा हूँ. मेरे लिए होगा डिलीवरी. मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना वैल्यू सिस्टम बोले जो मर्जी बोले, मुझे वो पुश करना है. तो वहां मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत मुख्तलिफ है. अब जो काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका कारोबार है, अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर है, वहां पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है करना. वहां पे आपको रिसीविंग एंड पे होना पड़ता है इन मेनी वेज. क्यों? आप डिपेंडेंट है वेंडर पे, आप डिपेंडेंट है सप्लाई चेन अपने के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे, आप डिपेंडेंट है अपने पार्टनर्स पे, आप डिपेंडेंट है जहां से इन्वेंट्री आ रही है. तो बड़ा कुछ डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क क्या है. मैंने आपको शुरू में बोला था कि अ लॉट ऑफ व्हाट आई से विल वेरी एज पर द नेचर ऑफ योर वर्क. कई जगहों पे आपको बहुत रिसेप्टिव होना पड़ता है टू द मार्केट ट्रेंड.
to what works in the market. कई जगहों पे नहीं होना पड़ता. What is important is for you to figure out आप कौन है, आप क्यों इस कारोबार में. देखें, मैं वो कारोबार कर ही नहीं सकता जनाब जिसमें मुझे अपना वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. ये मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, सवाल जवाब हो रहे हैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ. मैंने एक कंपनी हम चला रहे थे, हमने बंद की क्योंकि वो मैं नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे उसके लिए मार्केट के लिए बहुत अडेप्ट करना पड़ रहा था. एंड दैट्स नॉट व्हाट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स नॉट व्हाट गिव्स मी अ गुड नाइट स्लीप, दैट डज नॉट गिव मी दैट. मेरा जो पैशन को मैंने फिल करना है काम करके, मेरी मजबूरी है तो मैं नौकरी कर लेता हूँ. फिर जाके अगर मैंने नौकरी करनी है और पैसे कमाने हैं तो नौकरी कर लेता हूँ. तो ये डिसीजन तो भैया लेना पड़ता है. तो मैंने इसमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. लोगों को पसंद आए ना आए वो बात की बात है. अगर मैं समझता हूँ मेरी रिसर्च पूरी है, मैंने होमवर्क पूरा किया हुआ है, मुझे मार्केट की समझ है, तो आई एम गोना गो स्टार्ट सेइंग समथिंग. कहते हैं ना, यू स्टार्ट कॉलिंग अ व्हाइट वॉल येलो again and again and again and again and again and again and again. There comes a time people start saying, यार वाकई थोड़ी सी येलो है. That's the power of narrative. That's the power of pushing. तो it depends आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या सेल कर रहे हैं. मैं आपको बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा कि आप गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं. मे बी आप जो कह रहे हैं वो स्पॉट ऑन 200% ठीक हो आपके काम के हवाले से. मैं पर्सनली ऐसा काम नहीं कर सकता जहां पर मेरी वैल्यूज, मेरे बिलीफ सर्व ना हो रहे हो. मैं ऐसा काम नहीं कर पाता, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. विच इज वाई आई हैव वेरी क्लियरली चोजन माई करियर पाथ. कलीम वॉज वेरी काइंड इन द बिगिनिंग. इन्होंने कहा मेरी बड़ी हॉकी स्टिक राइज है. यार जहाँ हॉकी स्टिक राइज है वहाँ हॉकी स्टिक फॉल भी आ जाता है. तो क्या है, तो सब अल्लाह के हाथ में है. ओनली वन थिंग दैट्स रियलिटी, दैट स्टेज, दैट्स परमानेंट, दैट्स गॉड. बाकी हम तो कोशिश कर सकते हैं. मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरा बैक्ड बाय माय फेथ कि अगर मैं सही वैल्यूज के ऊपर खड़ा होकर कोई चीज करूंगा, मुझे कामयाबी देर में मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर. यहाँ पर थोड़ा सा आपने आई एम सॉरी टू मेरा जो क्वेश्चन का बैकग्राउंड था, इस सेक्शन से पहले ना 3 बजे मेरी एक वकील से मीटिंग थी. लेट मी टेल यू मैं क्यों इस क्वेश्चन की तरफ आया. अब 3 से कुछ 3:30 बजे तक पौना घंटा 35 मिनट में उसके साथ बैठा हूँ. ठीक है. आपकी आवाज कम हो गई जरा. डिस्कस कर रहा हूँ. आपने जितनी बातें की हैं, मेरी एक वकील से मीटिंग थी 3 बजे आज. मैं क्यों ये सवाल पूछा, इसलिए जो वैल्यूज से रेलेवेंट चीजें हैं, जो ट्रुथ से, जी मैंने सारी चीजें उसके सामने रखी. कहा यार करना आप इस तरह करो कि इस केस से आउट हो जाओ. लॉ सिस्टम के अंदर मैं वैल्यूज को लेके अगर चलता हूँ, अगर मैं ट्रुथ को फॉलो करता हूँ, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ, तो यार लीव इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. तो उसके फौरन बाद, उस मीटिंग के बाद ही 4 बजे ये सेशन शुरू हो गया. आपका जब डिस्कशन शुरू की ना, तो मैं तकरीबन ना मैं क्या करूं. अब मेरी पहले 3 बजे मीटिंग हुई है लॉयर के साथ, वो कहता है यार इस तरह करना है ना तो क्विट, डोंट डू इट. अगर तुमने वैल्यूज करनी है, अगर तुमने जो तुम्हारा जिसके ऊपर तुमने केस किया, अगर तुमने उसका भी ख्याल रखना है ना, तो यार ये काम मत करो. दैट वाज द रीजन. अगेन बड़ा मुश्किल डिसीजन है ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है. इसमें तो आप रुजू करें. मैं तो बता रहा हूँ, मेरे साथ हुई है ये. बड़ा मुश्किल काम है ये, बहुत मुश्किल. मैं आपकी पेन को समझ सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है. कुछ जगहों पे स्पेशली इन लॉ उसने जो मुझे तरीके बताए हैं, द वेज ही इज आस्किंग मी टू अडॉप्ट, नो वे, मैं क्विट कर जाऊंगा. तो मत करें फिर. अगर दिल और दिमाग नहीं मानता तो मत करें, थोड़ा सा नुकसान सह लें. That was the reason of this question कि सोसाइटी, इन्वायरमेंट, जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ, जिस पानी में मैं तैर रहा हूँ, अगर वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट है, वो मेरी वैल्यूज के अगेंस्ट है, एंड मुझे वो उठा के बाहर फेंक दे. आई एम डेड बॉडी. मैं उस समंदर में एक मुर्दा जिस्म हूँ जिसको वो समंदर उठा के बाहर फेंक देगा. मैं सिर्फ उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो मेरी आधे घंटे की लॉ स्पेसिफिकली मेरी जो मीटिंग हुई, मैं बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाइज एब्सोल्युटली फाइन, ये माशरा बड़ा अच्छा है. लेकिन जो कोर्ट्स के मैटर्स हैं, जो अदालतों के मैटर्स हैं, मैं आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माय हार्ट कि अभी जो आधा घंटा पहले या घंटा पहले हो गया तकरीबन जो हुआ है, तो वो मैं एक मुर्दा जिस्म हूँ उस पानी, वो मुझे उठा के बाहर फेंक देगा. आई कैन नॉट लिव. मैंने कहा बहुत मुश्किल सवाल है ये. मुरब साहब आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया और इसका जवाब कोई सही जवाब नहीं है. यू हैव टू काइंड ऑफ हैंडल इट
सर मैं तो अब मेरे साथ हुआ है ना, तो ये बड़ा मेरा कोइंसिडेंट हुआ कि ये सेशन बिल्कुल उस मीटिंग के फौरन बात हो गया, मैं तो भरा बैठा। नहीं, वो मुझे नजर आ रहा है एंड आई कैन फील योर पेन। अगर मैं आपकी जगह पे होता, बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है। इसको वे करना चाहिए आपको कि इसके नुकसान और फायदे कितने हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर तो लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है, शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज। लॉन्ग टर्म में फायदा है तो फिर बिस्मिल्लाह करें, फिर क्या हो सकता है, हार्ड डिसीजन ले कोई। Again, good luck with it, sir. Thank Any you. other questions, please? Anyone who सर has मेरा क्वेश्चन है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो मेरा क्वेश्चन है, अमार बोल रहे हैं। तलहा अख्तर। सर मेरा थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने सारा ये डिस्कस किया कि वी शुड बी फोकसिंग ऑन यू एंड आवरसेल्व्स, और हमारा जो नैरेटिव परसेप्शंस वगैरह सारे इंक्लूडेड हैं। तो एक मैंने ये सवाल शुरू में भी एनआईसी के शुरू में भी किया था, और डाउन द लाइन 2-3 दफा मैं इसको दोहरा चुका हूँ। वैसे तो एनआईसी हैड आल्सो क्लियर्ड इट, लेकिन एक फैक्ट हमें दिया गया था कि 44% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल बिकॉज वो जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या जो चीज बना रहे होते हैं वो मार्केट में वो मार्केट फिट प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो उसमें जैसे अभी आप बात करें कि वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ, यू और सारा कुछ, तो वो एक साइकोलॉजिकली लेवल आपको थोड़ा ज़हन में बिठाना पड़ता है कि यार मैं आई एम करेक्ट या मेरी प्रोडक्ट वो करेक्ट है। लेकिन अगर ये फैक्ट हमारे सामने, फैक्ट्स आर लॉजिकल, ठीक है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो अगर ये लॉजिकल है तो हमें किस तरीके से अपने माइंड को ये चीज समझानी चाहिए कि यार जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इट्स राइट। अभी कस्टमर्स तक वो पहुंची नहीं है, कस्टमर्स ने उसको यूज नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया। तो वैसे तो हमें ये पता है कि हमें एनएसई वालों ने भी बताया था कि इफ द प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग सो यू शुड पिवट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स, ये सारा कुछ है। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा इसको लेके जा रहा हूँ। आपका जो शो है आइडिया करोड़ों का, उसमें वन ऑफ द जज जो था, ही सेड कि जो स्टार्टअप्स हैं जो आइडिया करोड़ों पे आ रहे हैं, दे शुड कम आफ्टर 18 मंथ्स, जब उनका थोड़ा सी सेल शुरू हो गई हो या चीज़ें शुरू हो गई हो, तो तब जाके उनको इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और फिर थोड़ा सा पैसे रेस करने के लिए पूछना चाहिए। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि भाई अगर स्टार्टअप ही है वो 18 महीने वो सिर्फ बूटस्ट्रैपिंग पे चल रहा है, तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी। ऑन दी अदर हैंड मैंने ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक देखता हूँ, उसमें ये देख रहा हूँ कि एक बंदा जो है वो एक स्केटिंग बोर्ड लेके आया जो जिसके पीछे मोटर लगाई हुई उसने, एंड द जजेस ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसलिए की थी कि 2 महीने बाद क्रिसमस आने वाला है एंड इट कैन बी अ ग्रेट प्रोडक्ट फॉर दैट, सिर्फ 2 महीने में। तो ये एफर्ट वर्सेस जो रिजल्ट इतना बड़ा हमें नजर आ रहा है इधर विद इन पाकिस्तान, तो ये तो हमें लग रहा है कि यार जो जज हैं जिनसे पैसे भी हमने रेज करना है, दे वांट अ प्रोडक्ट जो भाई ऐसे रखो और ऐसे ही ऊपर चली जाए। तो वो जो है कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजिकल हम किस तरीके से उसको डील करें, या पाकिस्तानी कल्चर उसको इस तरीके से डील करें। सो अ फ्यू वर्ड्स ऑन दैट। अमार, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मेरा इसमें दो हिस्से हैं सवाल के आपके। मैं आपको पहले इस वाले का बता देता हूँ जो आपने शो के हवाले से बात की है। यार एक टीवी शो जो होता है ना, उसके अंदर बहुत से मूविंग पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत से ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि आप अनफॉर्चुनेटली जितना मर्जी अच्छा शो बना लें, एक अर्लियर इकोसिस्टम में जो बहुत रॉ इकोसिस्टम है ना, उसमें आप सारे के सारे वो मूविंग पार्ट्स अच्छी तरह जोड़ नहीं पाते। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। कैन आई से इट्स अ ग्रेट शो? नो, इट्स नॉट अ ग्रेट शो, इट्स एन एफर्ट, इट्स अ गुड एफर्ट। एफर्ट है एक तरफ काम करने की जिसके अंदर मुख्तलिफ KPIs हैं। वन KPI is to promote you as an entrepreneur. The other KPI is to show कि यार ये इंडस्ट्री बन रही है, इसमें इन्वेस्ट करो। एक और KPI हमारा पर्सनली ये कि स्पॉन्सर्स पैसे डालें, अल्टीमेटली पूल बन जाए और उस पूल के साथ हम कुछ पैसे देना शुरू कर दें स्टार्टअप्स को अंडर CSR or whatever. We have our own goals. Some people may agree with it, some don't. A lot of times I bring in people on the show and I've done 4 seasons. उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं सिर्फ from the outside व्यू जानता था, मुझे उनकी इंटेंट नहीं पता थी। कुछ जगह पे उन्होंने ऐसी बातें भी की टीवी के ऊपर जो नहीं करनी चाहिए, जिससे मैं खुद अग्री नहीं करता। लेकिन क्योंकि इट्स a democratic show, the startup has the right to say anything he wants, the investor has the right to say anything he wants. तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। अब 18 महीने का लेंथ, इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट। क्यों? some startups cannot start without money, बिल्कुल शुरू ही नहीं हो सकते, राइट?
तो उसमें उस तरह के स्टार्टअप्स के लिए अप्रोच बहुत मुख्तलिफ होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि टीवी पे ला के होता क्या है, कभी कभी हमसे गलती, हम वो क्या वो कहते हैं ना, वो हॉर्सेस और काउस को साथ जोड़ देते हैं कि बस सारे आ जाओ और प्रेजेंट कर दो। कई बार वो मैच मेकिंग ठीक नहीं होती। ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अर्ली इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम जीरो, पर ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं जो बहुत रिस्क अवर्स हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है इन्वेस्टर होने का पर्पस, कि आप रिस्क अवर्स ना हो, आप रिस्क सेवी हो, ले रिस्क, तो वो नहीं लेते, वो अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं, हेज कर देते हैं, यार मैंने 2 साल काम करके आओ, फिर बताना दिखाना, ट्रैक्शन दिखाना। अगेन उनकी अप्रोच है, मैं किसी को गलत सही नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। If I were an entrepreneur, I would say the same thing as you. So I totally agree with you. Number one. जो आपने दूसरी बात की about about values and about all of that and what the market wants. यार I repeat again, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा किसी को भी कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टेलर कर लें इन अ वे कि जो आपको चाहिए। मार्केट रिसर्च कोई नहीं की है, मार्केट की डिमांड को रेज नहीं किया है, डिजायरेबिलिटी नहीं देखी है। इसको हम आजकल डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, डिजाइन थिंकिंग पर्सपेक्टिव से स्टार्टअप को नहीं लेके चल रहे, तब भी आप कहते हैं कि मैं जो बनाऊंगा वो बिकेगा। दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगेन दैट्स योर ईगो टेकिंग ओवर यू, दैट्स योर ईगो टेलिंग यू ऐसे होगा। ईगो इज अ वेरी नेगेटिव थिंग इन मोस्ट केसेस। दैट्स व्हाई एस्टीम का फोकस ज्यादा है, ईगो का ऑपोजिट मेरे ख्याल में एस्टीम है। आपकी अगर एस्टीम ड्रिवन अप्रोच होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी अगर एस्टीम ड्रिवन अप्रोच होगी तो आपकी डिजाइन थिंकिंग अप्रोच हो जाएगी, आप कस्टमर सेंट्रिक हो जाएंगे। एस्टीम क्या करती है? एस्टीम हमेशा आपको गिविंग अप्रोच देती है, आपको औरों की जगहों की पे एम्पथाइज करना सिखाती है। सो आपकी अगर मार्केटिंग, आपकी अगर ब्रांडिंग, आपकी अगर फिलॉसफी कंपनी की कस्टमर सेंट्रिक है और वो बनी ही इसकी बेसिस पे है, तो आपका प्रोडक्ट मिसफिट नहीं हो सकता। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। पिवट करना ही तब पड़ता है जब आपने अपनी सेल्फ को, अपने पर्सपेक्टिव्स को मार्केट के डेटा के ऊपर इंपॉर्टेंस दे दी हो। तो वो तो मैं कहीं पर भी नहीं प्रमोट कर रहा अमर। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि व्हेन स्ट्रक्चरिंग योर कंपनी, व्हेन हायरिंग योर पीपल, मेक a team of believers who believe in a certain way of living, who believe in a certain way of approaching. What does our company stand for? How you operate day to day will vary, yaar. I completely understand. You have to adapt to customers. Sometimes you have to adapt to your supply chain partners. कोई आपको चीज बना के दे रहा है, गलत बना के दे रहा है, सस्ती बना के दे रहा है, माठी बना के दे रहा है, वो कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं, उसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम रियलिटी में रह रहे हैं, लेकिन when you get together, huddle together as a team, आप लोगों का कहते हैं ना वन फाइन एजेंडा, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आज तो हम ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, but at a certain stage in our journey, startup journey, हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे। किसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज छोड़ देंगे? जब आपने बात ही नहीं की है आपस में, जब आपकी एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज ही नहीं है, तो आप किसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ देंगे? आपको तो पता ही नहीं व्हाट टू स्टैंड ऑन। So that's what I was suggesting. So both of your points were very valid, and I've tried to answer them in a simpler manner. But ये कि good that you asked. I hope this was useful. मैं perspective दिया आपको अपना. Again, no, any discussion, whether from me or from anyone else who's maybe more experienced than I am, remember as a founder, remember something. Never listen to us. Just listen to us. Take our opinion. Keep it. Take that much for yourself जो लगता है काम का है। जो आपको नहीं क्लिक करता, आप उसको साइड पे कर दीजिए। तो ये तो बड़ी स्टैंडर्ड अप्रोच होती है और ये इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए और किसी को इसको ऑफेंस लेनी नहीं चाहिए। तो आई होप जो आपको यूजफुल लगे इसमें बात आप उठा लीजिए। जी, अगला सवाल। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जनाब आ रही है। तो सर आपने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं और बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर होते हैं जहाँ पे हमारे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल और स्टार्टअप दोनों को पैरेलल हम कैसे लेके चला सकते हैं? यार इसमें मैं आपसे, आप तलहा है?
तो आप इसमें ये देखिएगा, जी मैं जी सर। आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आप कैसे चलाएं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप क्यों करना चाह रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग। क्या पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बिजनेस की बॉटम लाइन में ऐड कर रहा है? क्या पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस की रेवेन्यूज को बढ़ा रहा है? अगर तो आपके बिजनेस की रेवेन्यूज बढ़ रही हैं उस पर्सनल ब्रांडिंग से, तो फिर तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको मैटर करनी चाहिए। फिर तो आपकी पूरी की पूरी सोच होनी चाहिए इसके पीछे कि मैं किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करूंगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। एक होती है अपनी ब्रांडिंग फॉर योर ओन सेल्फ, नोइंग हू यू आर, नोइंग द ब्रांड यू आर। हम कहते नहीं है देख देख के वो सूच लगा होता है नाइकी, कोई और चीज देखे ना DHL लोगो है, पता लग जाता है फॉरन ब्रांडिंग है हमारी। व्हाट्स योर ब्रांडिंग टू योरसेल्फ, वो पता होनी चाहिए। उसको कितना बताना है लोगों को वो वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। इफ दैट कैन add value to your business, sure, go ahead, talk about it, talk about yourself. But if it does not connect with the revenues of the business, then just focus on branding your own company, brand your product. For example, अगर आप mobility companies को देख लें तो you will hardly see the folks at Careem presenting themselves too much. उनकी टीम्स आगे लगी होती हैं, वो पीछे नजर नहीं आते हैं आपको ज्यादा। folks at Airlift, उस्मान वगैरह, उन्होंने recently round raise किया, you hardly see them because वो उनका बिजनेस का जो नेचर ऐसा है, तो उनका सामने आना मे बी इस तक जरूरत ना हो उन्हें, जब उन्हें जरूरत होगी वो आ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द बिजनेस आई फील। सो आपकी जो ब्रांडिंग नीड है वो नीड ऑफ द बिजनेस से डिराइव होनी चाहिए। अगर वहां से ड्राइव हो रही है तो वेरी गुड। जी, एनी अदर क्वेश्चंस के लिए? राइट, ठीक है। बेसिकली हम जी तला आप कंटिन्यू, आप खत्म कर लें। नहीं, बस मैं नहीं करने लगा था, मैं बताना ही चाह रहा था कि हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है और हम ट्रेनिंग देते हैं यूथ को। उसमें अब ये है कि मैं भी एक ट्रेनर हूँ और मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और मेरी वजह से बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें यह था कि मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना छोड़ दिया था और सिर्फ अपने ब्रांड को ही प्रमोट कर रहा था। तो सर क्लीन से भी मेरी डिस्कशन हुई और मैं काफ़ी इस बारे में सोच रहा हूँ और सर ने भी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी करें, इवेंचुअली आपकी वजह से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी आपकी कंपनी के अंदर। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा कंसर्न था इस चीज़ के लिए। तो आप अगर इस तरह का काम है आपका, तो आप तो आजकल तो बेस्ट टाइम है ये, बिकॉज ऑफ कोविड, अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड दीज ट्रेनिंग्स, टॉक अबाउट योर वर्क ऑन द इंटरनेट बड़ा आसान हो गया है और आई बॉल बढ़ गया बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर they have a lot of time to use to spend on the internet. So I think this would be a great time for you to start recording your videos and telling people जो branding आप knowledge spread करके कर सकते हैं ना, information share करके कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी branding होती है। And I think उसको आपको खास तौर पे you're in the trainings business or the education business, that's the best place for you to work on. You should definitely be the one appearing, speaking about it, create some nice graphics around your videos and make them viral. Use digital marketing and let people know that you exist. So sure, वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आपको तो बड़ा सूट करता है आपके मॉडल के साथ। Okay, I have a question. ग्रेट, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। समटाइम होता है कि हम लोग में से कुछ लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल, एक कह लें कि ट्रेडिशन से हटकर काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा भी एक एडटेक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमने आपको पोजीशन किया अपने आप को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से। वहाँ पर आप स्कूल्स में जाएं तो वो लोग भी लॉट ऑफ सिलेबस पे बिलीव करते हैं और आप पेरेंट्स के पास अगर जाएं तो वो बिलीव ही नहीं करते किसी भी चीज़ पे। वो कहते हैं बच्चा है, खेल रहा है। तो सम टाइम आपको ऐसा भी होता है कि ट्रेडिशन से हटकर जब आप कोई बात कर रहे होते हैं और आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ आपको अपने आप को पोजीशन करना और अपना परसेप्शन एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना भी मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ पे क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि आप ट्रेडिशन से हटकर बात कर रहे हैं ना, जो होता चला आ रहा है, जैसे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है वो चलता चला आ रहा है पिछले 70 साल से। तो जब आप उसके अगेंस्ट काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस का सामना होगा। देखिए, हमेशा अपस्ट्रीम चलना इज डिफिकल्ट, नेचुरली मुश्किल होता है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर 5 साल पहले जाइए तो सबको लगता था कि
वो क्या नाम है, करीम आई है, और वो जो आई है कंपनीज, ये तो टैक्सी वाले इनको मार देंगे, टैक्सी की यूनियन होती है वो तो खत्म कर देगी, इनको उड़ा के रख देगी। लेकिन आप देखिए कि सबको उसके सामने सरेंडर करना पड़ा बिकॉज एक मार्केट अपॉर्चुनिटी थी। अगेन दे केम विद मनी, दे केम विद मसल, ये मैटर करती हैं चीजें, बिकॉज उनकी मार्केटिंग उस हिसाब से थी, दे वर एबल टू रीच आउट टू लॉट ऑफ पीपल। तो वहां पे कैपिटल का एलिमेंट बहुत फायदा देता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए बिजनेस के आपको ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको इसको ब्रांड करके करना है, तो आई थिंक योर कमिटमेंट टू द कॉज इज योर बिगेस्ट ब्रांडिंग, योर कमिटमेंट टू द कॉज। डू यू एग्री विद मी? तो अगर आपका कमिटमेंट टू द कॉज मेरे घर तक, मेरे घर में बच्चों तक पहुंच जाए, if it's available on every screen, every phone, that would be the approach I take. Okay, I want to see commitment to the cause. I chose for our own children, I chose a very different school for them to study at, and it's not a popular name to take. It's not something that goes by our social circle and the class and everything. Nothing. Yes. None of that. It was a tough decision to take socially, but we took it because the commitment to the cause of that school reached me. Yes. And then because I was hungry for it, I went to them. Yes. And as the owner of that school so told us that मैंने आज तक पेरेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं, आपने मेरा 2.5 घंटे इंटरव्यू किया, क्योंकि उस पे बच्चे का फ्यूचर डिपेंडेंट था। बिल्कुल ऐसे। और उनका कमिटमेंट टू द कॉज ने मुझे, ही टच्ड माय हार्ट, बट आई वांटेड टू गो वेरीफाई इट। हाउ दे अप्रोच्ड इट, इट्स अ लॉन्ग जर्नी दे हैव टेकन, लॉन्ग जर्नी ऑफ अ लॉट ऑफ फेलियर्स, लॉट ऑफ लॉसेस दे हैव टेकन। आपके केस में अगर आप एक अपस्ट्रीम चीज बेच रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट नया बेच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको एलिमेंट ऑफ स्कूल को डिसरिगार्ड करके डायरेक्टली पेरेंट तक पहुंचना है। योर कस्टमर इज द पेरेंट, योर कंज्यूमर इज द चाइल्ड। Yes. The child's going to consume, the parent's going to pay for what the child consumes, right? Parents, so my strategy, on top of my head, we can always meet and discuss this also, inshallah. But if I get to know more about it, so I would also always build a strategy such that I would want to see मेरा customer clearly parent है, मुझे उस तक, उसके फोन तक, उसके घर तक कैसे पहुंचना है। with what? मैं स्कूल हूँ? नहीं। मैं एजुकेशन बेचता हूँ? नहीं। with the pain point. Yes. Here's a pain point that I solve that no one else does. We solve it differently for you. And we do it with a lot of commitment. And that commitment is the main selling point. That's what changes the game for people. So I'm sorry, बहुत वक्त नहीं है, लेकिन quickly मुझे समझ जो आया है, आप इस तरह सोचें तो मेरा ख्याल है आप कर जाएंगे। Agreed. Thank you. जी, And the second question, आपका season 5 कब शुरू हो रहा है? By the way, we are the winner of season 5. Season 5 शुरू हो जाना चाहिए था। Season 5 शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कोरोना ने कहा कि नहीं करो, तो हम रुक गए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगस्त के बाद अल्लाह ताला सबको भी सेफ रखे, इस फेज से गुजर जाए सारे, इंशाल्लाह फिर वो भी कर लेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू जनाब। आर वी डन? जी, सो नबील, एक मेरा सवाल था, और आपने आई थिंक हमारे इकोसिस्टम में very few people have seen so many negotiations happening between startups and investors, जितने आपने देखी हैं, ऑन स्टेज भी देखी हैं, बैक स्टेज भी देखी हैं, फॉलो अप कॉन्वर्सेशंस देखी हैं। मैं एक सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि NIC लाहौर कोटा के स्टार्टअप्स का भी इन्वेस्टमेंट समिट आने वाला है इस बार। वी आर प्लानिंग टू इनवाइट potential investors from diaspora because that is power of Zoom. You can invite people from other places too. So what were showstoppers? अगर आपको 2-3 आपको, if you can recall any 2-3 events or showstoppers in general, जो कि आपको लगता है कि स्टार्टअप्स में बड़े अच्छे स्टार्टअप्स थे, बड़े प्रेजेंटेबल थे, सब कुछ था, लेकिन इस बात पे आके कॉमनली चीजें
रुक जाती हैं, आगे नहीं बढ़ती? यार मैं हमेशा कहता हूँ कलीम ये बात कि जिस तरह मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, मुझे समझ आया है कि जो स्टार्टअप फाउंडर है वो मुझसे कोई 10 गुना ज़्यादा बहादुर है और मुझसे कोई 10 गुना ज़्यादा समझदार है। तो मैं किसी स्टार्टअप फाउंडर को कुछ बताते हुए घबराता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो गलत क्या करते हैं, पर जो मैंने देखा है इन दीज ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा मिसिंग चीज़ नज़र आई है स्टार्टअप्स के अंदर, जो जहाँ पे डील ब्रेकर्स हैं, जहाँ पे डील ख़राब होती है, वो उनका लैक ऑफ पेशेंस है। ये मैं आपको बार बार रिइटरेट करूँगा, पेशेंस बहुत मैटर करता है इन्वेस्टर को। आपकी जर्नी में आप कितने पेशेंट रहे हैं, आप कितने रेजिलिएंट रहे हैं, आपने कितने लॉसेस इनकर करके भी सस्टेन किया है, टूटा फूटा किया है लेकिन किया है। दैट्स अ बिग सेल। तो आई थिंक उस सेल पे काम होना चाहिए। दूसरा, द फाउंडर नीड्स टू नो हु दे आर। जो मैंने आज बोला, इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे ना लगे जैसे कि किसी और ने आपको स्क्रिप्ट दी हुई और आप पढ़ रहे हैं, कि ऐसा ना लगे कि अच्छा ऐ नहीं होया तो कोई गल नहीं, फिर नौकरी कर लेंगे। दिस हैज टू बी लाइक दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। आई मीन इट्स डू और डाई फॉर मी। मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है। दैट कमिटमेंट रियली वर्क्स वेल। जो होते हैं ना इन्वेस्टर्स ऑन द एज होते हैं, वो इस बात पे फौरन दे मोल्ड देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स यू कि नहीं ये दिस पर्सन इज गोना मेक समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ और माय मनी। ये हो गया। तीसरा डील ब्रेकर जो मुझे लगता है जो होता है वो थोड़ा सा एकेडमिक है, थोड़ा सा हर बंदा ही बात करता है उसके बारे में। इट्स टू बी इन द रॉन्ग मार्केट, इट्स टू बी इन अ मार्केट जहाँ पे आपको नो हाउ नहीं थी। मैं आम जबान में कह दूं, आपको उस डोमेन का खुद पता नहीं है। अगर आप जूता बनाते हैं तो क्या आपने जूते कभी खुद बनाए हैं? क्या आपको लेदर की किस्मों का पता है? क्या आप उस इंडस्ट्री के चट्टे कट्टा पता है आपको? ऐसे से इन पंजाबी के चट्टा कट्टा पता है उसका? अगर आपको नहीं पता और आपको काम कर रहे हैं, आप उसमें कितना एक्सेल कर जाएंगे? जस्ट बिकॉज यू सॉ अपॉर्चुनिटी, आपने भी शुरू कर दिया। दैट कांट बी द सेल। तो आई थिंक ये तीन चीजें अगर हों आपके पास तो वेरी हार्ड फॉर इन्वेस्टर टू से नो। ठीक हो गया जी। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट I think you have experience of more than 100 startups. Probably you have seen so many of them and on your shows, और एक vetting का process होता है और उसके बाद भी उस पे भी काफी सारे red flags होते हैं। तो by the way, if you can share 1 or 2 red flags that you think that, because काफी सारे जहाँ पे भी startups होंगे जो कि season 5 का इंतजार कर रहे होंगे, उसमें आना चाह रहे हो, so what are a few red flags जो कि आपकी टीम को लगता है कि नहीं यार ये that does not make a startup cool or presentable startup? In terms of what? Bringing on television? In terms of bringing on television and in terms of their potential too. यार बड़ा मुख्तलिफ चीज़ है टेलीविजन के अंदर। आप बड़ा कुछ और भी देख रहे होते हैं, बड़ी कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, वो ऐसा है ये वो ऑल दैट, वो मैटर करता है बदकिस्मती से। तो बिकॉज वो आपने टीवी भी तो करना है ना, तो टीवी इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, तो उसमें वो आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मैंने आपको रेड फ्लैग जो बताए ना, टू मी फ्रैंकली बाकी बहुत छोटी चीजें कि जी वो आपका जो आपने मार्केट एनालिसिस किया हुआ था वो खराब था, आपका बिजनेस मॉडल फ्लॉड है, आपके फाइनेंशियल्स वीक है, ये सब चीजें आर वेरी मैनेजेबल। आई वुड but they can't be deal breakers. I've given you the deal breakers. You have to go, and then you have to do the time. You have to go phase, that series of failures and the sessions and the series of getting up again. वो करना पड़ता है. You have to know exactly what you stand for and why you're building the company. And then thirdly, you should know what you're making. You should be a domain expert. You should know कि जो काम मैं कर रहा हूँ उसका माहिर हूँ मैं. Because that's where you are. That's the big sell to any investment company or investor investing their time and money on you. ठीक हो गया जी. All right, so I